افطار کا وقت خوشی کا وقت ہوتا ہے. روزہ دار کو دو خوشیاں حاصل ہوتی, ایک وہ وقت جب وہ افطار کرتا ہے اور دوسرے جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا. میرا نہیں خیال کہ کسی بھی کھانے میں اور کسی بھی وقت کھانے میں اتنی خوشی ہوتی ہو جتنی افطار کے وقت 2 گھونٹ پانی پی کر ہی خوشی ہو جاتی. تو اس وقت یہ یاد کریں, آج آپ کا ہوم ورک ہے یہ کہ افطار کے وقت آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ایک دن مجھے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے. تو جس طرح اس وقت مجھے خوشی ہو رہی ہے, اللہ کرے کہ اس وقت پہ مجھے اسی طرح کی خوشی ہو, میرے اندر وہ ڈر نہ ہو, خوف نہ ہو کہ پتہ نہیں اب میرا کیا بنے گا. پھر یہ کہ افطار جلد کرنا مسنون ہے, افطار جلد کر لینا چاہیے, کیونکہ بعض اوقات ہم ادھر ادھر کے کاموں میں لگے رہتے ہیں, کچن سمیٹ رہے ہوتے ہیں, اچھا میں آ رہی ہوں, اور اس میں 2-3 منٹ بعض اوقات لوگ ڈیلے کر دیتے ہیں. تو ڈیلے نہیں کرنی چاہیے, بس ادھر اعلان ہو اور دوسری طرف افطار ہو جائے, چاہے پانی کا گھونٹ ہی کیوں نہ ہو. بہترین تو یہی ہے کہ کھجور سے کھولا جائے روزہ, لیکن اگر کھجور نہ ہو تو پھر پانی کا گھونٹ, دودھ کا گھونٹ, جو بھی چیز ہو اس سے کھول لیا جائے. سحری اور افطاری دونوں اوقات میں انسان اللہ سبحانہ وتعالی سے دعائیں کر سکتا ہے, اور ان دعاؤں میں خصوصاً اپنی بخشش کی دعا, کیونکہ اگر بخشش ہو گئی تو سمجھیے کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا. ہمارا الٹیمیٹ گول تو یہی ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی کو راضی کرنے اور اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے. تو روزے کا اصل مقصود پھر کیا ہے؟ تقوی. یعنی اس ساری ایکٹیویٹی سے جو بھی رمضان میں ہوگی, جن جن احکامات پر عمل کریں گے, ہم جو کچھ کریں گے, جو کچھ چھوڑیں گے, ان سب کا جو نچوڑ ہے یا خلاصہ ہے, یہ جو چیز ہم کو لینا ہے وہ تقوی ہے. تو یہ تو ہمارا گول ہو گیا, ایم ہو گیا ہمارا. اس کے لیے کرنے کے کام کیا کیا ہے؟ نمبر 1 تو روزہ رکھنا ہے, کیونکہ پہلی آیت میں کہا گیا کتب علیکم الصیام, اور پھر وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ, اور پھر تاکیدی حکم فَلْيَصُمْهُ. ٹھیک ہے, نمبر 1 روزہ رکھنا, جس کی دلیل کیا کیا ہے اس کو بے شک اپنی کتاب پہ انڈر لائن کر لیں یا جیسے بھی آپ لکھنا چاہیں. تو کتب علیکم الصیام وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ اور فَلْيَصُمْهُ. اس کے بعد آیت 185 میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے. روزہ رکھنے کے بعد دوسرا عمل قرآن کے ساتھ تعلق. اگرچہ ساری زندگی مومن کا تعلق رہتا ہے, لیکن خاص طور پر ان آیات کے ریفرنس سے قرآن سے تعلق اور رمضان کے حوالے سے. یہاں پر قرآن پاک کے اتارنے کا اصل مقصد کیا بتایا گیا ہے کہ یہ ہے کیا؟ ہدی للناس. کیا ہے ہدی للناس؟ کیا ہے, کیا معنی ہے ہدی للناس؟ ہدایت ہے انسانوں کے لیے, ساری انسانیت کے لیے. للناس تو وہ کون ہے؟ للناس وہ کہاں رہتے ہیں جن کے لیے یہ ہدایت ہے؟ وہ ہم خود بھی ہیں اور ہمارے آس پاس کے لوگ بھی ہیں. تو قرآن پاک کے ساتھ ایسا تعلق کہ اس کی رہنمائی سے ہم خود بھی فائدہ اٹھائیں اور ہمارے آس پاس بھی اٹھائیں. وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ, اور پھر یہ رہنمائی ایسی ہو کہ قرآن پاک کے اندر تلاش کیا کرنا ہے. نمبر 1 وہ نشانیاں, وہ اہم چیزیں, یعنی ساری کتاب رہنمائی ہے, لیکن پھر بینات. بینہ کیا ہوتا ہے؟ نشانی, روشن نشانی, یعنی وہ آیات اور وہ احکامات خاص طور پر جس سے ہمیں ایک رہنمائی نصیب ہو. اور کس چیز کے بارے میں خصوصی توجہ؟ والفرقان, فرقان پر, حق و باطل, اچھے برے, حلال حرام, جائز ناجائز میں تمیز. اس کو خود اپنے پہ بھی دوبارہ واضح کرے اور دوسرے لوگوں پر بھی. اب یہ کام کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ہم اس مہینے میں خود بھی سمجھ کر پڑھیں اور دوسروں کو بھی. تو کرنے کے کاموں کی لسٹ میں یعنی تقوی جو ہے یہ گول ہے, اس کو تو بالکل سینٹر میں رکھیں یا سب سے اوپر رکھیں. اور کرنے کے کام میں نمبر 1 روزہ رکھنا, اور پھر قرآن پاک سے تعلق, پھر یہ کہ اس کے نیچے کیسا تعلق, ہدی للناس لکھ لیں. اور پھر اس کے بعد ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدہ, تاکہ گنتی پوری کرو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں خاص طور پر روزے کے بارے میں جو احکامات ہیں, یعنی فقہی احکامات ہیں, ان کو بھی دوبارہ سے دہرانا ہے سب. خصوصاً آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں آہستہ آہستہ یہ چیز بہت کم ہوتی جا رہی ہے کہ لوگ پہلے نماز نہیں بھی پڑھتے تھے, روزہ ضرور رکھتے تھے, لیکن اب روزہ نہ رکھنے والے بھی پیدا ہوتے جا رہے ہیں, اور اس کے لیے کئی طرح کے جواز پیش کرتے ہیں. اور خصوصاً خواتین میں یہ مشکل ہے کہ روزہ رکھتے تو ہیں, لیکن اگر اس میں سے کچھ چھٹ جاتے ہیں تو ان کی گنتی پوری کرنے میں سستی اور کوتاہی ہوتی, اس کی طرف توجہ نہیں. بہت سی خواتین پوچھتی ہیں نا کہ یہ ہم نے خود جان کے تو نہیں چھوڑے روزے, جو شرعی عذر کی وجہ سے چھوڑے جاتے ہیں. تو یہ جو قرآن کا حکم وَلِتُکْمِلُوا الْعِدَّةَ, یہ بہت ضروری ہے. یعنی روزہ ایک ایسا فرض ہے جس کی گنتی پوری کرنا ضروری ہے. اگر رمضان میں نہیں تو بعد میں,
تو मरीज के अहकाम क्या है, मुसाफिर के अहकाम क्या है, और उसके अलावा दूसरे लोग जो किसी वजह से रोजा छोड़े, मसलन खवातीन के अहकाम खास तौर पर क्या है, उसके बारे में इल्म होना और दूसरों को भी उसके बारे में बताना। अगला हुक्म यानी अब करने के कामों में क्या आ गया, जो छोटे छोटे काम है मजीद, तुकमिलुल इद्दा। नंबर 2, वली तुकब्बिरुल्लाह, अल्लाह की बड़ाई बयान करना। किस पर? अल्लाह की बड़ाई बयान करना किस पर, किस बात पर? आगे पढ़े ना आयत को, देखे ना। अला मा हदाकुम, ये कौन है? अला मा हदाकुम, ये कौन है? सब लोग बतौर आम है और आप बतौर खास हैं। इन सारे मुसलमान बतौर आम किस तरह है कि सबको अल्लाह ताला ने दीन की नेमत दी, जो भी अपने आप को मुसलमान कहता है, ठीक, लेकिन जिन्हें दीन समझने की तौफीक दी वो बतौर खास हो गए। और क्या करना है? वलअल्लकुम तशकुरून, शुक्र अदा करना है। अब इसके तरीके क्या होंगे? तुकमिलुल इद्दा तो पता चल गया, तुकब्बिरुल्लाह और तशकुरून कैसे होगा, इसका तरीका क्या होगा, ये भी बाद में डिस्कस करते हैं अभी, ठीक है। यानी अमली तरीके और प्रैक्टिकल चीजें जो हैं वो बाद में अभी आती हैं। अगला काम क्या करना है? वो इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दाअवतद दाई इज़ा दाअनी, खास तौर पर दुआओं का एहतमाम रमजान में कबूलियत के औकात आम दिनों के मुकाबले में ज्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे सहरी के वक्त दुआओं की कबूलियत का वक्त होता है, रोजे की हालत में आप हालत इबादत में है, दुआओं की कबूलियत का वक्त है, और इफ्तार के वक्त खास तौर पर, फिर रात को तरावीह में कुरान सुनने के बाद, तो ये सारे मौके जो हैं कबूलियत दुआ के हैं, इसलिए दुआओं का खास तौर पर एहतमाम। यानी आम दिनों में भी जो दुआएं मांगते हैं तो इसमें जरा सी और कसरत या हस्बे इस्तिताअत कसरत, मौके से फायदा उठाना। यानी अल्लाह ताला की रहमतों के दरवाजे खुलने वाले हैं, तो जितना चाहे उससे मांग ले, जो चाहे उससे मांगे, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? वलियस्तजीबू ली, ये भी तो मेरी बात माना करें, वलियुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। फिर उसके बाद आप देखिए मजीद कुछ फिक़ही अहकाम है। आप देखिए कि गोल क्या था? तकवा। अच्छा, जब हम तकवा की बात करते हैं ना तो हम समझते हैं शायद दुनिया छोड़ देना तकवा है, शोहर को छोड़ देना, उससे कोई ताल्लुक न रखना और दुनिया की किसी चीज से रग़बत न रखना, शायद ये तकवा है। यहाँ बताया गया कि नहीं, जायज हुदूद के अंदर इवन रमजान में भी इंसानों के हुकूक अदा करना वो तकवा है। हमारा दीन एक मोतदिल दीन है, क्योंकि शुरू में लोगों के अंदर ये अंडरस्टैंडिंग थी कि शायद, और इसी वजह से ना वो शक की बात जो अभी की कि कुंतुम तख्तानूना अनफुसकुम, तुम अपने आप से खयानत कर रहे थे, इन्हें यकीनी बात नहीं पता थी इसलिए डामाडोल थे। तो अल्लाह ताला ने हुक्म वाज़ेह करके तुम्हारी रहनुमाई फरमा दी। किसी भी एक चीज की तरफ झुकाव का हो जाना वो आसान होता है कि इंसान एक रास्ता इख्तियार कर ले या दूसरा कर ले, और दोनों को साथ लेके चलना मुश्किल होता है आमतौर पर, तो उस चीज की तरफ भी तवज्जो दिलाएगी। फिर इसी तरह आपने बुखारी में पढ़ा होगा कि सौम विसाल से मना किया गया कि रोजे के साथ जोड़ के रोजा रखना, इसीलिए कुलू वशरबू, खाओ पियो, इफ्तार के बाद खाना, सहरी के वक्त खाना, और सहरी के वक्त खाने का जो हुक्म है उसके बारे में आप कुछ अहादीस आपको मालूम होंगी कि उस वक्त खाना जो है वो बायसे बरकत है, बायसे रहमत है, उसकी तरफ तवज्जो दिलाएगी। हाँ, एक दूध का घूंट क्यों ना हो, लेकिन सहरी खाना जो है वो जरूरी है। तो और रमजान में करने का काम फिर क्या हुआ? अज़वाजी मामलात और खाने पीने के मामलात में रहनुमाई, यानी अल्लाह ताला की रहनुमाई। और खाने पीने के मामलात में मजीद थोड़ी सी बात ये कि कैसी खुराक, यानी दुनिया के एतबार से भी जरा सोच लें कि अपना वक्त बचाने के लिए क्या पकाएंगे, और इबादतों में यकसुई के लिए क्या पकाएंगे, ना उसमें बिल्कुल ही ऐसी खुराक हो कि जिससे इतनी कमजोरी लायक हो जाए कि रोजा ही ना रख सके, और आप कहें कि मैं तो तकवा के हुसूल के लिए फाका कुशी कर रही हूँ। तो रोजा रखना फाका कुशी करने का नाम नहीं है। और इसी तरह ना इतना ज्यादा खाने पकाने की तरफ तवज्जो हो कि तरावी न पढ़ी जा सके, या ये है कि सुबह नमाज के बाद कुरान की तरफ तवज्जो न दी जा सके, तो इस चीज की तरफ भी, फूड मैनेजमेंट जो है उस पर भी थोड़ी सी बात। और उसके औकात फिर बता दिए गए कि कब तक ये, हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयद मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र। अगला काम क्या करने का है? क़यामुल लैल, रात की तरावी की नमाज जो है। फिर मजीद एतकाफ, जिनको अल्लाह ताला नसीब करे, जिनके ऊपर और जिम्मेदारियां कम हो, जैसे बच्चे छोटे या घर पर कोई बीमार या बुजुर्ग या कोई ऐसा जिसकी खिदमत मतलूब हो, तो अगर वो है तो उसकी खिदमत ही इबादत है। लेकिन अगर कोई ऐसी जिम्मेदारी खास नहीं है तो फिर एतकाफ की तरफ भी तवज्जो। और उसके बाद अगरचे ये रमजान के अहकामात में से नहीं है, लेकिन इससे मुल्हक है। मुल्हक का क्या मतलब है? जुड़ा हुआ है। इसके फौरन बाद आया कि अल्लाह के हुक्म से अगर हलाल खाना छोड़ते हो
तो हराम भी छोड़ दो। रिस्क हराम को छोड़कर रिस्क हलाल के लिए दुआएं भी, कोशिश भी और उसकी तरफ तवज्जो भी। इसके अलावा मजीद जो बातें हमें पता चलती हैं अहादीस से, वो है कि सदका खैरात, और उसमें रोजा इफ्तार कराने से लेकर अपने घर वालों को खिलाने पिलाने में फराख दिली का सबूत देने से लेकर हमसायों की खबरगिरी और फिर नेकी और खैर के मुख्तलिफ कामों में हिस्सा लेने से लेकर पूरी दुनिया के मुसलमानों को इस मौके पर याद रखना जहाँ जहाँ जरूरत हो, यानी वो तमाम चीजें खुसूसी तौर पर इस महीने में तवज्जो के काबिल हैं। फिल वक्त तो यही चीजें जहन में थी। अब इसको थोड़ा सा मजीद देखते हैं कि मुख्तलिफ काम किस तरह करना है, और उसमें आपको भी मैं शरीक करूंगी कि आप भी अपने अपने मशवरे दें। पहली बात तो यह है कि रोजा रखना है, ठीक है। उसके लिए आपके पास सहर और इफ्तार के औकात जो हैं वो सही तौर पर होने चाहिए, ताकि औकात की सही पाबंदी हो, क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि हमें सही इल्म नहीं होता और हम एंड जब सहरी बंद होने का वक्त होता है उस वक्त उठ रहे होते हैं, या तो ये उसकी तैयारियों में से होता है। इसके अलावा कोई भी अच्छी किताब या कोई भी अच्छी कैसेट इस मौजू पर जरूर एक दफा सुन लें, ताकि पूरी चीज की तैयारी या जहन आमादा हो जाए। उसके बाद यह है कि कुरान पाक के साथ ताल्लुक के तरीके सोचें। एक तो आपका अपना नाजरा कुरान पाक होगा, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि आयत आई है हुदल लिन्नास, लोगों की हिदायत के लिए। बात यह है कि जब इंसान रोजे से होता है ना, तो उस वक्त इंसान के अंदर एक खास किस्म की कैफियत होती है जो उसे दुनिया से निस्बतन दूर और अल्लाह ताला से निस्बतन करीब करती। हिदायत की तरफ सबका रुझान होता है। कुरान चूंकि इस महीने में उतारा गया, इसलिए इस महीने में कुरान पढ़ना एक खास खुशी का बायस होता है। उसको सीखना और उसको समझना और उसको सिखाना एक खास किस्म की कैफियत इंसान के अंदर पैदा करता है, जो कुरान पाक रोजे की हालत में पढ़ा या पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि साफ तौर पर लिखा गया है कि ये किताब इंसानियत की हिदायत के लिए, लेकिन इंसानियत तक इस किताब की हिदायत किस वक्त जाएगी? उसी वक्त जाएगी कि जब कुरान के जानने वाले उस इल्म को दूसरों तक पहुंचाएंगे किसी भी तरीके से, खा किताब देकर, खा पढ़ के सुनाकर, खा किसी भी और तरीके से। लेकिन रमजान के मौके पर जबकि दूसरे लोगों का भी रुझान कुरान पाक की तरफ होता है, तो उनके कुरान की मोहब्बत को असल हुक्म की तरफ फेर दीजिए कि वो इससे हिदायत हासिल करें। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि अपने अपने घर में, अपने अपने इलाकों में, अगर आप किसी स्कूल में जा सकते हैं तो स्कूल में, किसी क्लब में, किसी भी जगह जहाँ पर लोग इकट्ठे हों, वहां पर आप इस चीज का एहतमाम कर सकते हैं कि मिलजुल कर कुरान पाक पढ़ें। इसके लिए जरूरी नहीं कि आप मुफस्सिर कुरान ही हो तो आप ये काम कर सकते हैं। आप कुछ ना कीजिए, सिर्फ कुरान का तर्जुमा ही पढ़कर सुना दीजिए। और अगर आप समझते हैं कि आपको पढ़ के सुनाने में दिक्कत है, तो आप कैसेट के जरिए भी मदद ले सकते हैं, या आप जो आने वाले लोग हैं उनको भी शरीक कर सकते हैं अगर उनमें से अच्छी उर्दू पढ़ने वाले हैं। या आप यूं भी कर सकते हैं कि कुरान पाक की जैसे तिलावत एक रुकू की सुनी है, फिर उसके बाद उसका तर्जुमा जैसे अभी आपको सुनाएगी, एक कैसेट प्लेयर आपके पास हो, आप क्या करें, नाजरा कुरान पाक के सेट्स आपके पास कैसेट की शक्ल में मौजूद हो। अल्हम्दुलिल्लाह ये अभी जो किरात आपने सुनी है ये भी तैयार कराई गई है, मुहैसनी का सेट तैयार हो चुका है, अजमी का मौजूद है, शातरी का मौजूद है। तो इनमें से आप कोई भी एक लेकर कुरान पाक, तो आप क्या कर सकते हैं, लोगों को, घर वालों को, रिश्तेदारों को, अजीजों को, दोस्तों को बिठा के उन्हें सबके कुरान पाक खुलवाएं, कैसेट ऑन करें, वो अपना अपनी उंगली रख के उसकी तिलावत सुने। जब रुकू हो जाए कैसेट बंद कर दे, फिर आप क्या करें, उसका तर्जुमा उनको पढ़ के सुना दें, फिर ऑन कर लें। बेशक अपने पास से एक लफ्ज ऐड ना करें, डजंट मैटर। यानी अगर आप ये समझते हैं कि अभी आप बहुत तफसीर करने के काबिल नहीं हैं, बहुत आप ज्यादा बोल नहीं सकते, या अभी आप बहुत सी चीजों पे घबराते हैं बात करने से, तो सबको आप बताइए कि मैं भी सुन रही हूँ, आप भी सुनिए, फिर ऑन कीजिए, फिर वो सब सुने, फिर तर्जुमा आप पढ़ के सुनाइए, फिर इसी तरह। और अगर आप उससे आगे बढ़ सकते हैं तो आप क्या कर, ये एक तरीका बता रही हूँ, ये मैं ये नहीं कह रही कि यही एक तरीका जो आपको फॉलो करना है, ये मुख्तलिफ ऑप्शंस आपको दे रही हूँ कि कुछ न कुछ आप जरूर कर सकते हैं। हा? दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आपको अल्लाह ताला ने खुद अरबी अच्छी पढ़ने की सलाहियत दी है, आप अरबी थोड़ी थोड़ी पढ़ें, साथ तर्जुमा पढ़ें, और जिस तरह रमजान का प्रोग्राम आप सुनते रहे हैं मुझसे, उस तरीके पर आप जहाँ जहाँ मुनासिब हो मजीद अहादीस कोट करें, या कोई बात आपको जो आपने पढ़ रखी हो और जो आपके पास यकीनी इल्म हो, यानी अपनी आरा का बहुत इजहार न करे, जो यकीनी इल्म। देखिए कुरान पाक की तफसीर किस तरह होती है, नंबर 1 कुरान पाक की तफसीर कुरान पाक ही से,
यानी उससे रेलेवेंट आयात जो हैं उनको आप बता सकते हैं। लेकिन रमजान में बहुत ज्यादा रेलेवेंट आयात इसलिए भी नहीं कोट करते होते क्योंकि वो पूरा जो कुरान से गुजरना होता है, तो वो एक जगह नहीं तो दूसरी जगह वो आयत आ जाएगी। इसलिए दूसरा तरीका तफसीर का क्या होता है कि कुरान पाक की तफसीर हदीस से, यानी जो आयत है उससे मुतल्लिक कोई हदीस जो है आपको मालूम है तो वो आप सुना सकते हैं, वो आप पहले से ही तैयार करके लिखी हुई हो। जैसे पिछले साल मैंने काफी तफसीलन अहादीस कोट की थी मुख्तलिफ मौज़ूआत पर। तीसरी बात यह कि क्लास में जो कुछ आप पढ़ते रहे हैं उसमें से अगर कुछ बातें आप रोजाना का सिपारा पहले खुद पढ़ लें, उसमें से कुछ चीजें हाईलाइट किए हुए हों, उनको आप एक पेपर पर नोट कर लें आयत के नंबर के साथ, जहां जहां वो आए उसमें से वो बातें जो आपके दिल पे असर की, जो आपको अच्छी तरह समझ आई, जो आपकी दुरुस्त हैं, वो आप दूसरों को भी सुना दें। तीसरी बात यह है कि आप कोई भी अच्छी तफसीर, मसलन मुख्तसर तफसीर में अहसनुल बयान मुख्तसर है, क्योंकि अगर आप बहुत लंबी तफसीरें पढ़ेंगे तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, इतना वक्त शायद आपके पास ना हो कि आप पूरे सिपारे की सारी तफसीर डिटेल में पढ़ सके और फिर आप आगे पढ़ाने बैठे। और चूंकि रमजान में इतनी लंबी तफसीर का वक्त नहीं होता, लिहाजा जब आपके पास बहुत सा इल्म इकट्ठा हो जाता है फिर उसको डिलीवर करने में आप मिक्सअप हो जाएंगे। तो इसलिए ब्रीफ रहें, प्रिसाइज बात करें और छोटी छोटी चीजें आप उसमें ऐड करें, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग पहले भी करते रहे हों तो वेल एंड गुड, लेकिन जिन लोगों के पास पहला मौका है जैसे आपकी अक्सरियत का, तो वो इस तरीके पर मुख्तसर सी बातें चुनी हुई छोटे छोटे जुमलों की शक्ल में ऐड कर दें। फिर इसी तरह यह है कि अगर आपके पास बिल्कुल तैयारी करने का वक्त नहीं है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना कि आपके पास टाइम ही नहीं होता कि आप पढ़ सकें, तफसीर पढ़ सकें, या आपने पढ़ तो ली लेकिन आप अभी हिम्मत नहीं पा रहे इतनी देर डिलीवर करने की, या इतनी देर बोल नहीं सकते, या कुछ और वजह है, तो उस सूरत में फहमुल कुरान कैसेट जो है वो भी कैसेट पर लोगों को जमा करके सुना सकते हैं। फिर इसी तरह यह है कि अगर आप समझते हैं कि लोग ऐसे हैं आपके आसपास जिनके पास 2 घंटे बैठने का वक्त नहीं, क्योंकि ये सेशन कम से कम 2 घंटे का हो तो एक सिपारा होता है, इससे कम में नहीं होता। तो अगर आप समझे कि लोगों के पास, मसलन आप किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं या किसी ऐसी जगह पर वॉलंटरीली जा रहे हैं और लोगों को इंटरेस्ट है लेकिन उनके पास वक्त नहीं है, मसलन आधा ही घंटा है, तो आप एक और काम ये कर सकते हैं कि आप हर सिपारे की सिलेक्टेड आयत पढ़ के उनको उसका तर्जुमा और उसकी तफसीर भी सुना सकते हैं, और इस तरह हर रोज 30 पारे एक एक करके सुना सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि कुरान पाक की तजवीद की क्लास जो है वो शुरू कर सकते हैं, लोगों को नाजरा पढ़ाना शुरू करें। हो सकता है 1 महीना वो रोज पढ़ते पढ़ते इस काबिल हो जाएं कि वो काफी हद तक कुरान पाक ठीक पढ़ सके, और उसके बाद कुछ अहादीस सिलेक्ट कर ले या आयात सिलेक्ट कर ले, उनको आप उस मौके पर साथ सुना दे। चाहे आप बच्चों की तजवीद की क्लास लें, चाहे आप यंगस्टर्स की लें, चाहे आप बूढ़ों की लें, चाहे आप किसी की भी लें, लेकिन कोई मौका स्पेयर न करें कि जहां खैर की कोई बात बताए नहीं, क्योंकि कुरान पाक हुदल लिन्नास है। तजवीद पढ़ना लाजिम है, यानी सही पढ़ना कुरान पाक को जरूरी है, लेकिन खाली वो पढ़ा के फर्ज अदा करना मत समझे, उसके लिए साथ जरूरी है कि कुछ न कुछ, जो जाहिर है कि जब कुरान पढ़ाते हैं तो ये हो नहीं सकता कि अपना दिल न तड़पना शुरू हो जाए और वो बात जो आपको लग रही है वही आप बात दूसरे को भी कहानी की शक्ल में और किसी न किसी आसान तरीके से दूसरे तक न पहुंचाएं। फिर इसी तरह जो हमने पहले बात की, यानी रात की तरावीह की नमाज जो है, उसमें अगर करीब की कोई मस्जिद हो वहां आप जा सकते हैं, अगर कोई हाफिजा हो तो घर पे इकट्ठा करके आप लोग अपने खानदान वाले या अपने गली मोहल्ले वाले लोग मिलके पढ़ सकते हैं। लेकिन इन रातों में क़याम का बहुत अजर है, और जो कुरान पाक हालत नमाज में, हालत क़याम में पढ़ा जाता है उसका अजर सवाब भी कुछ और है। जिसे वो हदीस में आता है ना, मन क़ाम रमदान ईमान व एहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबे, जिसने रमजान की रातों में क़याम किया ईमान और एहतिसाब के साथ, उसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। तो हस्बे मौका तरावीह का एहतमाम जो है, और उसमें आसानी हो जाती है अगर चंद लोग मिलकर पढ़े। अगर और कोई नहीं आपके पास, अपने बच्चों को साथ खड़ा कर लें, क्योंकि बाज़ों का तो मस्जिद नहीं जाते या कुछ होता है, उनको खड़ा करें या कुछ। और जैसा कि आपको बताया भी गया था कि हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के गुलाम जो थे हजरत ज़कवान, वो मुसहफ से भी देखकर पढ़ा करते थे। तो अगर कोई नहीं आपके पास, कोई और दूसरा नहीं, ना कोई हाफिज़, ना मस्जिद, ना कुछ, तो कुल हुवल्लाह पे तरावियां मत पढ़े। उसके लिए क्या करें, मोटे लफ्जों वाला सिपारा पास रख के और अकेले भी खड़े होकर एक एक सिपारा रात को पढ़ लें।
اور اگر آپ کے ساتھ کوئی اور لوگ موجود ہیں تو ہر 2 یا 4 رکعتوں کے بعد آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اسی سپارے کے جو اہم موضوعات ہیں ان میں سے چند ایک کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے جو سپارہ پڑھا ہے اس کے اندر کیا بات آئی ہے۔ تو اس طرح اگر آپ میں سے ہر شخص صرف 10 لوگوں تک بھی اس رمضان میں قرآن کی تعلیم پہنچاتا ہے تو آپ خود سوچیے کہ بات کہاں تک جا سکتی ہے، اور زیادہ تو آپ جتنا چاہیں اس نور کو بڑھا لیں۔ پھر اسی طرح آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہر روز تھوڑے تھوڑے جو مسائل ہیں وہ بھی بیان کر سکتے ہیں کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں کو کرنا چاہیے، کن کو نہیں کرنا چاہیے، ان چیزوں پر بھی آپ بات کر سکتے ہیں۔ اور کوشش کریں کہ اختلافی مسائل سے بچیں اور اس میں جھگڑے نہیں اور اس کو بہت ایشو نہیں بنائیں۔ خاص طور پر ہمارے ہاں جس موضوع پہ بہت رمضان میں جھگڑا ہوتا ہے وہ تراویح کی تعداد ہے، اس میں آپ لوگوں کو ان کی سہولت پہ چھوڑ دیں، ان کا پیچھا نہ کریں کہ وہ اتنی پڑھیں یا اتنی پڑھیں۔ یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جس پر ہم آپس میں دل برے کریں اور مسلمانوں کی اجتماعیت میں خلل آئے اور ایک دوسرے پر حرف اٹھائیں، کیونکہ یہ تقویٰ کے خلاف ہے۔ کیوں کہا گیا کہ جو کوئی روزے میں ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے، اسے شور شرابے اور لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرنا چاہیے، اور اگر کوئی اس سے لڑنے جھگڑنے کو آئے تو فَلْيَقُلْ إِنِّ امْرُؤٌ صَائِمٌ، کہ میں تو روزے سے ہوں، میں تو اس پہ بحث نہیں کر سکتا، میں جھگڑا نہیں کر سکتا، جو تمہارا دل چاہتا ہے وہ تم کر سکتے ہو۔ بنیادی طور پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو چیز ثابت ہے کہ رمضان اور غیر رمضان میں آپ جو تھے وہ 8 رکعت پڑھتے تھے، لیکن زیادہ نفلوں کے اوپر کوئی قید نہیں۔ اگر کوئی 20 پڑھتا ہے یا آپ کسی مسجد میں پڑھتے ہیں اور وہاں 20 میں قرآن پاک کا سپارہ پورا ہو تو سپارے کو پورا کیجئے، اور اس میں 20 پڑھنے میں حرج نہیں ہے، اس کو 20 تک پڑھ جائیے۔ یعنی یہ ایسی چیزوں میں سے نہیں ہے کہ جو حرام حلال کے دائرے میں آتی ہیں یا نعوذ باللہ کسی بدعت اور اس میں آتی ہیں۔ اس میں بنیادی طور پر بات یہ ہے، صرف اتنا سا فرق ہے کہ بعض لوگوں کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت 8 ہی تھی، اور اگر کوئی زیادہ پڑھنا چاہے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کسی ایسی مسجد میں ہیں کہ جہاں پر 8 پڑھ رہے ہیں اور سپارہ وہاں مکمل ہو گیا ہے تو اس میں آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم گناہگار ہو رہے ہیں۔ ان میں کیا ہوتا ہے کہ قیام لمبا ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ تو میرا نہیں خیال کہ کسی اور موضوع پر کوئی بہت اختلافی رائے پائی جاتی ہو رمضان اور روزے کے احکام سے متعلق، اس لیے باقی چیزوں میں انشاءاللہ آپ کو مشکل نہیں ہوگی احکام بتاتے ہوئے، اور ویسے بھی آپ پڑھ کے ہی سنائیں گے، اپنے پاس سے تو فتوے نہیں دیں گے۔ پھر اس کے بعد دعائیں جو ہیں کوشش کریں کہ لوگوں کے اندر مسنون دعاؤں کا رواج ہو، کیونکہ دعا ہر انسان کی ضرورت ہے، لیکن ہمارے ہاں غیر مسنون طریقے بہت رائج ہو گئے ہیں، تو اس کی وجہ سے بسا اوقات ایسی دعائیں بھی آ جاتی ہیں کہ جن میں جو مفہوم جو ہے وہ اتنا درست نہیں ہوتا، یا اس میں کچھ ایسے الفاظ شامل کر دیے جاتے ہیں بسا اوقات جو شرک کی حد تک پہنچتے ہیں۔ تو جب آپ مسنون چیزوں کو انشاءاللہ رواج دیں گے تو وہ چیزیں بغیر کسی جھگڑے کے خود بخود ختم ہوتی جائیں گی، اور خود اپنی بھی دعا کرے تو اچھا۔ ایک اور چیز، آپ اپنی کلاسز میں جیسے اگر سکھانا ہو تو اجتماعی طور پر اونچی آواز میں دعا پڑھوائیں، لیکن جیسے آپ لوگ پڑھتے ہیں تو کبھی کبھی خاموش بھی پڑھیں، کیونکہ صرف راگ لگا کے دعا پڑھنے سے بعض اوقات نقصان یہ ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہماری پوری توجہ کوئی نہیں ہوتی اس پر۔ ہم کوئی بیچ میں سے آدھا جملہ ادھر پڑھ لیا، آدھا آخر میں پڑھ لیا، بیچ میں سانس لیتے رہے، اور اس طرح وہ دعا کا جو پورا ادب ہے وہ نہیں رہتا۔ صحابہ کرام ہمیں کوئی اس طرح مل کے اکٹھے دعا نہیں پڑھا کرتے تھے، اس لیے اس کو مستقل طور پہ رواج دینا پھر بدعت ہی نہ ہو جائے، یا ہم کو ایسی رسم نہ شروع کر دیں کہ جو دین میں ایک نیا اضافہ ہو۔ تو اس لیے تعلیم کے لیے، سیکھنے کے لیے مل کر پڑھنے میں حرج نہیں ہے، لیکن اسے لازم سمجھنا اور فرض سمجھنا یہ درست نہیں ہے۔ کبھی کبھی یعنی آپ جب سیکھ جائیں لوگ تو پھر کیا کرنا شروع کر دیں کہ دل میں پڑھیں تاکہ یکسوئی اور توجہ زیادہ ہو۔ جیسے کہ پہلے بھی بات ہوئی کہ اصل جو ہدف ہے اور گول ہے روزے کا وہ کیا ہے؟ تقویٰ۔ تقویٰ 2 چیزوں کا نام ہے، ایک اللہ کے خوف اور دوسرے اللہ کی محبت، یعنی اللہ تعالیٰ کا احساس ہونا دل میں۔ یہ پیدا اس وقت ہوتا ہے جب آپ ان ساری چیزوں کو چھوڑیں گے جو اللہ تعالیٰ نے منع کی ہیں، یعنی حرام، ناجائز، ناپسندیدہ امور کو چھوڑنا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔ جس نے روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ شخص بھوکا یا پیاسا رہے۔ اور خصوصی طور پر جس چیز کی پریکٹس کرنی ہے وہ زبان کی احتیاط ہے۔ ہمارے لیے سب سے بڑا دشمن ہمارا اپنا ہمارے منہ کے اندر ہے، اور وہ ہماری زبان ہے۔
बसा औकात हम अपनी जबान से ऐसी बातें निकालते हैं जो हमारे सारे अमाल को बर्बाद कर सकती, इसलिए बी केयरफुल। सबसे ज्यादा जिस चीज की प्रैक्टिस की जरूरत है वो क्या है? जबान की हिफाजत, इसको लगाम देना, इसको कंट्रोल करना। पहले जमाने में तो चुप का रोजा होता था, अब वो नहीं रहा, लेकिन हमें चुप तो नहीं रहना मगर गलत चीजों से परहेज करना है, और उसमें खास तौर पर किसी को दुख देने वाली बात ना हो। बहुत कुछ डिस्कस हो चुका है, लेकिन सिर्फ याद दहानी के तौर पे तो इंसान भूलता रहता है। कहीं बदतमीजी की टोन ना हो, कहीं रूडनेस ना हो, कहीं शाउट करना ना हो, कहीं किसी को ताना देना ना हो, किसी के एहतराम में कमी ना हो। इन सारे उमूर का ख्याल रखना है। बहुत सी चीजें आप अपने रवैये और अपने अमल से दूसरों को सिखा सकते हैं, और खुसूसन अपने से छोटों के साथ, जैसे बच्चे हैं, सर्वेंट्स हैं, वगैरह वगैरह। जिसको बच्चों का और अपने सर्वेंट्स का एहतराम करना आ गया वो कामयाब हो गया, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ वो हमें जवाबन पकड़ नहीं सकते बेचारे ज्यादा, या मौका हमें मिल जाता है कुछ न कुछ मनमानी करने का। फिर इसके बाद सदका खैरात। सदका खैरात जो है ये इंसान के गुनाहों का कफारा है, ठीक है। रमजान में 1 दिरहम या 1 रुपया जो है वो 70 के बराबर है। सदका खैरात में 2-3 चीजें आप कर सकते हैं। एक तो है खाना खिलाना। कोशिश कीजिए कि आसपास के वो लोग, वो बस्तियां, वो इलाके जहाँ पर लोगों को वो सब कुछ मयस्सर नहीं जो आप अपने लिए पसंद करते हैं, तो उसमें उन तक खाना पहुंचाएं। और एक चीज जो आमतौर पर हम देखते हैं या कर जाते हैं कि खुद तो कुछ खाते हैं मगर गरीबों को खिलाते वक्त एकदम बिल्कुल ऐसा खाना खिलाते हैं जैसे उनको इंसान ही नहीं समझते या जानवर समझते। तो इस मेयार का जरूर ख्याल रखें कि खाना वो हो जो दूसरों के लिए भी खाने के काबिल हो। बसा औकात हम पका पकाया खाना भिजवाते हैं मुख्तलिफ जगहों पर या मुख्तलिफ इलाकों में, तो उसमें भी इस पहलू का ख्याल जरूर रहे कि वो लुकमा आप खुद कितनी खुशी से खा सकते हैं जो हम दूसरों को सवाब और अल्लाह की खुशी के लिए खिला रहे हैं। क्योंकि कुरान पाक में क्या आता है खाना खिलाने के बारे में? वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। वो खिलाते हैं उसकी मोहब्बत में। तो जो काम अल्लाह की मोहब्बत में किया जा रहा है उसकी क्वालिटी भी तो अच्छी होनी चाहिए ना। फिर इसी तरह यह है कि खाना खिलाने के अलावा कपड़ा पहनाना, और खुसूसन ईद के मौके पर आप इसके बारे में देख सकते हैं कि जिन लोगों को कपड़ा मयसर नहीं वहाँ उसका एहतमाम करना। यानी आप यूँ कर सकते हैं कि जो अपने सदकात हैं उनको कुछ तकसीम कर लीजिए। कुछ अपने आसपास के लोगों को ये ना हो कि हम दूसरी तरफ करते करते अपने जो हमसाए हैं हमारे वो भूखे हों, या हमारे जो गरीब अवाम है वो तरसते तड़पते रहे कि उनको जो रमजान में जो कुछ थोड़ा बहुत मिलता था वो सारा उनका हक जो है वो मारा जाए। तो बुनियादी तौर पर जो सदकात होते हैं किसी भी इलाके के वो उन्हीं के गुरबा पे जाते हैं। हाँ, उसके अलावा भी अगर कहीं और जरूरत है तो भेजे जा सकते हैं, मगर अपने इलाके के जरूरतमंद लोगों को, अपने शहर के, अपने मुल्क के, उनको भी आप फरामोश नहीं करेंगे। क्योंकि बसा औकात हम इम्बैलेंस हो जाते हैं, एक तरफ काम करने लगते हैं तो दूसरी तरफ बिल्कुल हम बंद कर देते हैं कि नहीं अब ये तो गोया जरूरत ही नहीं रही। फिर इसी तरह यह है कि सदका जारिया के कामों में, दीन को फैलाने के, उसमें आप क्या कर सकते हैं कि छोटे छोटे पैम्फलेट्स हैं जो रमजान के मौजू पर हैं, वो इंशाल्लाह ताला यहाँ अवेलेबल किए जाएंगे, उनको आप दूसरों को पढ़ने के लिए दे सकते हैं। इसी तरह जो लोग न तो किसी क्लास में आ सकते हैं, ना ही कोई दर्स अटेंड कर सकते हैं, ना आप उन तक पहुंच सकते हैं क्योंकि मसलन ट्रैवलिंग करते हैं या कुछ और, तो आप उनको कैसेट्स की शक्ल में गिफ्ट वगैरह भी दे सकते हैं। और कुछ और कैसेट्स जो अभी आई हैं उसमें खुशगवार बाहमी ताल्लुकात, जो आपको याद होगा डिस्कशन थी सूरत अल-हुजरात में ही, बच्चुगली, हसद, बुग़्ज़ वगैरह पर काफी तफसील में ये कैसेट रिलीज हो चुकी है। क्योंकि रोजा रख कर भी बाज़ औक़ात लोग जो हैं वो आपस में ग़ीबत वगैरह और इस तरह की चीजें नहीं छोड़ते, तो इन अहकामात को आम करने की माशरे में जरूरत है कि जिसकी वजह से हमारे माशरे का सुकून बर्बाद है। इसी तरह दोस्ती के मौजू पर, और इसी तरह इंसान अल्लाह का मोहताज है। ये कैसेट खास तौर पर उन लोगों के लिए जो दीन की तरफ, अल्लाह की तरफ आना ही नहीं चाहते, तवज्जो ही नहीं देना चाहते, बहुत दूर हैं, उनको अपनी जिंदगी में जरूरत महसूस नहीं होती, तो उन्हें ये एहसास दिलाने के लिए कि आप अल्लाह के मोहताज हैं, आपको जरूरत है, अल्लाह की तरफ तवज्जो करें। इसी तरह तहारत पर भी कैसेट्स रिलीज हो चुकी हैं, हज और उम्रा की भी हो चुकी हैं। आयतुल कुर्सी पहले इस तरह रिलीज की गई थी कि सिर्फ आयतुल कुर्सी थी, लेकिन अब उसकी दूसरी तरफ आयतुल कुर्सी का तर्जुमा और तफसीर भी मौजूद है। कारी मुहस्सिनी की किरात है, दुरूद शरीफ पर है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन,
फिर इसी तरह तालीमुल कुरान जो आपकी क्लास के कैसेट्स थी वो 124 पारे हो चुके हैं। इंशाल्लाह ताला रमजान में उम्मीद है कि ये मुकम्मल हो जाएगा सेट। फिर इस तरह कारी शात्री और एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी, ये जो सूरत पता में थी ना आयात मोहम्मद रसूलुल्लाह रहमा बैनहुम वाली, जो ये भी आपस के बाहमी ताल्लुकात के लिए एक अच्छी याद दहानी है। फिर इसी तरह घर टूटने न पाए, ये भी कैसेट जो है घरों की यानी शौहर बीवी और जो घर वालों के ताल्लुकात की बाहम इस्लाह की बातें हैं उनकी याद दहानी है। क्योंकि अफसोस के साथ ही कहना पड़ता है कि हमारे माशरे में डिवोर्स का रेट बढ़ता चला जा रहा है और बसा औकात ये दिलों की तंगी और आपस के छोटी छोटी बातों पर क्लैशेस का बढ़कर बहुत बड़ा बन जाना और कुछ ऐसी चीजें कि जो हम बसा औकात करें तो अल्लाह ताला की नाफरमानी भी हो जाती है, अल्लाह की नाराजगी भी हो जाती है और दुनिया का भी सुकून लुट जाता है। फिर घर वालों को आग से बचाएं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। फिर ये कि हम कुरान क्यों पढ़ें, ये खास तौर पर रमजान में आप कर सकते हैं। हज और कुर्बानी के मसाइल, रसूलुल्लाह का हज वो जो एक कहानी थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज की। फिर अल्लाह के मददगार बनो। फिर किताबुल फितन जो बुखारी की हमने की उसको भी रिलीज कर रहे हैं इंशाल्लाह। अगर आप लोग यहाँ राब्ता रखा करें तो उससे आपको फायदा हो सकता है। अब हम वैसे कोशिश ये भी कर रहे हैं कि इंटरनेट पर अपडेट कर दिया करें जो भी नई चीजें आई हैं। तो अगर आप कभी कभी कंप्यूटर खोल के इंटरनेट पे देख लें कि और क्या आ चुका है तो इंशाल्लाह उससे भी आपको पता चल जाएगा।